السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج سے میں اردو گرامر فار آل ایگزامز کا ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں بہت ہی آسان انداز میں روزانہ کے سبق کو سمجھایا جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات پہلے بتلا دوں کہ اردو قواعد تمام ایگزام کا ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کلاس 10th کا ہو یا کلاس 12 کا ہو، سب کا اردو قواعد ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے، آپ سبھی سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10th یا کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، آج کے سبق میں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے لفظ کے بارے میں، اس کے بعد جملہ کے بارے میں پڑھیں گے، موضوع اور مہمل کے بارے میں پڑھیں گے، اسم اور فعل کے بیان کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ لفظ یعنی ورڈ کو پڑھیں گے۔ لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، انسان کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں اسے لفظ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے موضوع اور دوسرے کا نام ہے مہمل۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے موضوع اور دوسرے کا نام ہے مہمل۔ موضوع کہتے ہیں کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے قلم، پانی، چائے وغیرہ۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے قلم، پانی، چائے وغیرہ۔ تو موضوع کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس کا معنی ہو۔ انسان اپنی زبان سے جو باتیں نکالتا ہے، اگر وہ لفظ، اگر وہ باتیں، اگر ان بات کا معنی ہے تو اسے کہتے ہیں موضوع۔ جیسے کہ قلم، پانی، چائے، ان تینوں لفظوں کا معنی ہے، اسی لیے ان تینوں کو ہم لوگ موضوع کہیں گے۔ ساتھیوں، موضوع کو جو ہے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ کو موضوع کہتے ہیں اور موضوع کو ہی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ مہمل کی تعریف یہ ہے کہ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو۔ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے ولم، وائے، ووٹی وغیرہ وغیرہ۔ مہمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے ولم، وائے، ووٹی وغیرہ وغیرہ۔ مہمل اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی انسان اپنی زبان سے جو باتیں نکالتا ہے، اگر ان باتوں کا کچھ معنی نہیں ہے، وہ الفاظ، وہ باتیں اگر معنی دار نہیں ہیں تو اسے ہم لوگ کہیں گے مہمل۔ جیسے کہ ولم، وائے، ووٹی، ان تینوں لفظوں کا کوئی معنی نہیں ہے، ان تینوں لفظ یہ جو ہے معنی دار نہیں ہے، اسی لیے یہ کیا ہوگا؟ مہمل ہوگا۔ نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور ان میں موضوع اور مہمل کا فرق کریں۔ یعنی نیچے 4 جملے دیے گئے ہیں، ان میں ہم کو فرق کرنا ہے کہ کون سا لفظ موضوع ہے اور کون سا لفظ مہمل ہے۔ روٹی ووٹی کھا لیں، اس میں جو ہے روٹی کیا ہے؟ موضوع، ووٹی کیا ہے؟ مہمل۔ روٹی موضوع کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کا معنی ہے۔ ووٹی مہمل کیوں؟ اس لیے کہ ووٹی کا معنی نہیں ہے، ووٹی معنی دار لفظ نہیں ہے۔ پانی وانی پی لیں، پانی وانی پی لیں، یہاں پر پانی کیا ہوگا؟ موضوع، وانی کیا ہوگا؟ مہمل۔ تم ٹال مٹول مت کرو، تم ٹال مٹول مت کرو، تو ٹال کیا ہو جائے گا؟ موضوع، اور مٹول کیا ہو جائے گا؟ مہمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹال یہ معنی دار لفظ ہے، اور جو بھی معنی دار لفظ ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، اور مٹول مہمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹول کا کچھ معنی نہیں ہے، اور جس کا کچھ معنی نہ ہو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ مہمل۔ ہم نے خوب کھانا وانا کھایا ہے، تو کھانا ہو جائے گا موضوع اور وانا کیا ہو جائے گا؟ مہمل۔
اب हम लोग पढ़ते हैं जुमला के बारे में कि जुमला किसे कहते हैं। जुमला कहते हैं दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल ज़ैद बीमार था। जुमला कहते हैं दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल ज़ैद बीमार था। तो साथियों, जुमला कहते हैं कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यानी दो या दो से ज़ायद अल्फाज मिलकर ऐसा मजमुआ बने कि जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारा मुखातब है उनको बात समझ में आ जाए। तो ऐसे ही दो तीन लफ्ज़ को मिलाकर जो मजमुआ बनता है, ऐसे मजमुआओं का नाम क्या है? जुमला है। जैसे कल बहुत गर्मी थी, यहाँ पर कल बहुत गर्मी थी 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ये चारों अल्फाज मिलकर ये एक ऐसा मजमुआ बना है कि जिससे मुखातब को बात समझ में आ जाती है। मिलजुल कर मेहनत करो, यहाँ भी बात समझ में आ रही है। कल ज़ैद बीमार था, यहाँ भी बात समझ में आ रही है। साथियों, जिन मजमुआओं से बात समझ में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जुमला कहते हैं। शर्त यह है कि वहाँ 2-3 अल्फाज मिले हुए हों। नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे जुमलों के मजमुआ को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जुमले में अल्फाज की तरतीब होनी चाहिए। अगर तरतीब सही नहीं है, जिस लफ्ज़ को पहले लाना चाहिए था उस लफ्ज़ को अगर आखिर में लेकर के आ जा रहे हैं, या जिस लफ्ज़ को आखिर में लाना चाहिए था उसको बीच में या शुरू में लेके आ रहे हैं, तो ऐसे मजमुआओं को हम क्या नहीं कहेंगे? ऐसे मजमुआओं को हम जुमला नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि से दरख्त चिड़िया उड़ गई। असल में क्या था कि दरख्त से चिड़िया उड़ गई। अब इसको तरतीब अलग कर दिया तो अब ये जो है जुमला नहीं होगा। से दरख्त चिड़िया उड़ गई, खाया खाने मैं, यानी मैंने खाना खाया। दोनों मिसालों को जो है जुमला नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जो है लाम छूट गया है, यहाँ पर लाम जो है आप बढ़ा दें। तो यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई कि अगर तरतीब अच्छी हो, अगर तरतीब ढंग वाली हो तो उसको जुमला कहेंगे। अगर तरतीब ढंग वाली नहीं है, जैसे तैसे तरतीब बना दिए तो जो है उसको जुमला नहीं कहेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जुमला के अक़साम के बारे में कि जुमला के कितने किस्में हैं। तो उसका जवाब होगा कि जुमला की 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है मुस्बत जुमला। नंबर 1 में क्या है? मुस्बत जुमला। नंबर 2 में है मनफी जुमला और नंबर 3 में है सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं? मुस्बत जुमला कहते हैं कि वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे मुस्बत जुमला कहेंगे। यानी जिसमें किसी काम को करने का हुक्म हो या होने का हुक्म हो तो उसे मुस्बत जुमला कहेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। उसकी एक मिसाल है कि अहमद ख़त लिख रहा है। अहमद ख़त लिख रहा है। दूसरी मिसाल है बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर जो मिसाल है अहमद ख़त लिख रहा है, यहाँ पर एक काम को किया जा रहा है और बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ भी स्कूल जाना जो है यहाँ पर एक काम को किया जा रहा है। तो जिस काम या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस जुमला के अंदर जो है, जिस जुमला के अंदर किसी काम को किया जाए या कोई काम हो तो ऐसे जुमलों को जो है मुस्बत जुमला कहेंगे। यहाँ पर जो 2 मिसालें हैं, इन दोनों मिसालों के अंदर कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है तो इसे हम लोग मुस्बत जुमला कहेंगे। मनफी जुमला कहते हैं कि वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या नहीं पाया जाए, जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए। जैसे उसने किताब नहीं
फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा। मनफी जुमला कहते हैं कि वह जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा। मनफी जुमला कहते हैं उस जुमला को कि जिसमें किसी काम का न करना या न होना पाया जाए, तो उसे मनफी जुमला कहेंगे। जैसे कि उसने किताब नहीं फाड़ी, उसने किताब नहीं फाड़ी। तो यहाँ पर किताब, यहाँ पर जो एक काम है किताब फाड़ना, यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मनफी जुमला। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, यहाँ पर फूल तोड़ना जो है एक काम है, यहाँ पर फूल तोड़ना जो है काम नहीं पाया जा रहा है। तो जिसमें नहीं काम का पाया जाए या ना काम हो, तो उसे क्या कहेंगे? मनफी जुमला कहेंगे। यहाँ पर जो है जुमला की 3 किस्मों में से तीसरी जो किस्म है सवालिया जुमला, वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है? क्या ये कलम तुम्हारा है? क्या तुमने चिड़िया देखी? क्या तुमने चिड़िया देखी? सवालिया जुमला उसे कहते हैं कि जिसमें कोई सवाल पूछा जाए या जिसमें कोई सवाल पैदा हो, तो उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है, या क्या ये कलम तुम्हारा है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि भाई क्या ये कलम तुम्हारा है? तो ऐसे ही जुमलों को क्या कहेंगे? सवालिया जुमला कहेंगे। क्या तुमने चिड़िया देखी? तो यहाँ भी सवाल हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सवालिया जुमला कहेंगे। यहाँ पर नोट के तहत कोई बात यहाँ पर कह रहे हैं कि याद रहे सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क होता है। हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम कहीं पर सवाल के अंदाज में कोई बात लिख रहे हों या कहीं सवाल हो रहा हो, तो हम जो है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल या निशान नहीं देते हैं। ये हमारी कोताही है। हमको हर जगह जहाँ भी सवाल हो वहाँ पर सवालिया निशान देना चाहिए। सवालिया निशान क्या है? ये सवालिया निशान है, इसको हमें ज़रूर देना चाहिए। फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है? क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है? ये हो जाएगा हमारा मुस्बत जुमला और ये हो जाएगा हमारा सवालिया जुमला। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मौजू कलिमा के बारे में। फिर से हम मौजू की तारीफ़ रिपीट कर लेते हैं। मौजू कहते हैं उस लफ्ज़ों को कि जिसका कुछ माना हो, तो उसे क्या कहते हैं? मौजू। जैसे कि किताब, उसका एक माना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मौजू। फिर हमने पढ़ा कि मौजू को ही क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। तो कलिमा को ही मौजू कहते हैं और मौजू को ही क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। तो कलिमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है इस्म, नंबर 2 में है फ़ेल, नंबर 3 में है हरफ। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं कि इस्म वो कलिमा है, इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स या चीज़ या जगह के नाम को बताए। इस्म कहते हैं, इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे फ़ातिमा, मेज़, दरख्त, पता, किताब वगैरह वगैरह। इस्म कहते हैं कि चाहे वो शख्स के नाम हो, चाहे वो चीज़ के नाम हो, चाहे वो जगह के नाम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। फ़ेल कहते हैं, फ़ेल वो कलिमा है किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो किसी ज़माने के साथ, जैसे गया, आता है, करेगा, जा रहा है वगैरह वगैरह। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना हो। याद रहे कि उसमें कोई ज़माना होता है, चाहे माजी का ज़माना हो, चाहे मुस्तक़बिल का ज़माना हो, और चाहे जो है हाल का ज़माना हो। तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना उसमें ज़रूर होता है। हरफ कहते हैं, हरफ वो कलिमा है जो अपना माना खुद ना बताए, बल्कि अपना माना बताने के लिए इस्म या फ़ेल का मोहताज हो, तो उसे क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। जैसे पर, मैं, का, की, के वगैरह वगैरह। ये ऐसे ये हर्फ है या ऐसा लफ्ज़ है कि जो अकेले अपना माना नहीं दे रहा है, बल्कि इसके समझने के लिए किसी इस्म या फ़ेल को मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही लफ्ज़ को क्या कहेंगे? हरफ कहेंगे। जुमलों में इस्म, फ़ेल और हरफ की वजाहत का चार्ट। यहाँ पर जो है एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पर हमें इस्म, फ़ेल, हरफ की तमीज़ करना है, यानी पहचानना है। जुमला है लड़की ने आम खाया।
लड़की ने आम खाया, तो लड़की और आम ये दोनों हो जाएगा इस्म, और खाया ये हो जाएगा फ़ेल, और ने हो जाएगा हरफ। बच्चा नहर में डूब गया, यहाँ पर बच्चा और नहर हो जाएगा इस्म, डूब गया हो जाएगा फ़ेल, में हो जाएगा हरफ। फ़ातिमा ने फूल तोड़ा, यहाँ फ़ातिमा और फूल हो जाएगा इस्म, तोड़ा हो जाएगा फ़ेल, ने हो जाएगा हरफ। मेज़ पर बिल्ली बैठी है, यहाँ पर मेज़ बिल्ली हो जाएगा इस्म, बैठी है फ़ेल, और पर हो जाएगा क्या हरफ। ज़ैद ने अहमद को मारा, ज़ैद अहमद हो जाएगा इस्म, मारा हो जाएगा फ़ेल, और को हो जाएगा क्या हरफ। इस्म की किस्में, अब यहाँ हम इस्म की किस्मों को शुरू कर रहे हैं कि इस्म की जो किस्में होती हैं वो कभी कभी बनावट के एतबार से होती हैं, कभी जो है जिन्स के एतबार से होती हैं, कभी अदद के एतबार से होती हैं। पहले जो है इस्म की तारीफ़ हम कर लेते हैं। इस्म कहते हैं कि किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे साजिद, पटना, गंगा वगैरह वगैरह। तो माना के एतबार से जो है इस्म की दो किस्में हैं। नंबर 1 में है इसमें ज़ात, नंबर 2 में है इसमें सिफत। इसमें ज़ात कहते हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं। वो चीज़ जानदार या बेजानदार, या मादी हो या गैर मादी हो, इसमें ज़ात किसे कहते हैं? शख्स, जगह, या फिर जो है वो जानदार हो या बेजानदार हो, मादी हो या गैर मादी हो, उसे इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह वगैरह। अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें सिफत को। इसमें सिफत कहते हैं वो इसम है जो किसी चीज़ या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है वो चीज़। इंसान के बारे में बतलाए कि वो इंसान कैसा है, या किसी चीज़ के बारे में बतलाए कि वो चीज़ कैसी है। जैसे काला, सफ़ेद, गोरा, अच्छा वगैरह वगैरह। नोट, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको कहते हैं मौसूफ। जिसकी सिफत बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? मौसूफ। जैसे काली टोपी अहमद की है, काली टोपी अहमद की है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिफत हो जाएगी काली और मौसूफ हो जाएगा क्या? अहमद। यहाँ काली सिफत और टोपी मौसूफ हो जाएगा। पुरानी गाड़ी जैद की है, पुरानी गाड़ी जैद की है, यहाँ पुरानी हो जाएगी सिफत और गाड़ी ये मौसूफ है। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। और जिस साथी को रोज़ाना के सबक का PDF लेना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9934753942। इंशाअल्लाह इस नंबर पर आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आज का सबक यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।